With this Chaupai of Sri Ramcharitmanas, I seek permission of our unit head, sir, to start today's program. So, thank you, sir. All of you please stand up for Aditya Vandana. My salutations to that Guru who revealed to me that truth which is unfragmented, infinite, timeless divinity and which pervades the universe, movable or immovable. I bow to that noble Guru who is beyond consciousness, time and space, who is peace, pure and is beyond form, manifest and unmanifest. With these words, we pay homage to all our teachers and acknowledge their efforts in shaping the person we are today. It is because of their meticulous toil that each one of us have earned a respectable space in society. God bless them with long, healthy and happy life. Teachers were never the wealthiest, but always the most respected community in human civilization. They were never the mighty kings, but their mightier gurus who stood firmly behind their pupil in all their endeavors. From Maharshi Vishwamitra, Maharshi Vashishta from Treta Yuga to Chanakya in Kali Yuga, they were all the kingmakers. We will now have the ceremonial lighting of the lamp. Have you ever pondered why do we light a lamp in front of deity every day? Lighting of lamp symbolizes prosperity and the triumph of light over darkness, but it has profound meaning too. The wick represents our ego, while the oil, the impurities in our mind. When we lit the impurities, gets slowly exhausted and the ego too finally perishes. The flame of a lamp always burns upward, which inspires us to acquire knowledge, which will take us towards the higher ideals. Knowledge removes ignorance, just as light removes darkness. I request all our dignitaries and principals, sir, to light the holy lamp. आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. It's a proud moment for all of us that eminent personalities of Grasim Industries Rehla Respected Shri Ashok Kumar Gupta ji, Unit Head, Grasim Industries, Rehla. Mr. Ajit Tiwari, Mr. Ajay Kumar Gupta, Mr. Sanjeev Mishra, Mr. Deepak Sharma, and my dear teachers. Wish you a very happy Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated in honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It is a day to acknowledge, to recognize the contribution of teachers and to pay tribute to the teachers in the growth and development of the nation. When we train the students in the art of living, art of learning, and in the art of absorbing that knowledge, then we are training them to be a complete citizen. Martin Luther King rightly said, intelligence and learning makes for education. The role of a teacher is to recognize the student's potential, to pick each and every student as they are rare gems. Dr. APJ Abdul Kalam said, the sign of true knowledge is courage. The role of a teacher in the society where terror seems to be ruling, violence and hatred is rampant, where we are being ruled by fear, it is very important to be courageous in our thinking and conviction. Parents and teachers influence children. Teachers inspire generation of students and make a positive impact on impressionable minds. Teacher is not merely who teaches, he is the greatest of the artists, shaping the young minds. Let us not turn away from our responsibility. Let us not trivialize our responsibility. We need to constantly work on it. Enter the classroom with energy and lot of optimism. Appreciate the students and make a difference in the lives of the students. We have to create a very conducive environment for teaching, learning process that will definitely uplift the spirit of the students. We have to teach them to be physically, emotionally, and mentally strong to face the challenges of life. Life skills plays a very important role. It is a student, if the student is ready to learn, anybody can become a teacher. Make ABPS Rehla a learning center. Recognize your power and responsibility.
Last but not the least, I express my heartfelt gratitude on behalf of my staff and thank to the management for being so supportive at all times. Thank you so much. रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, 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 ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही,
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन कि प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। Thank you, Abhishek. 40 वर्ष बाद मुझे मौका मिल रहा है, 5 सितंबर पर मुझे बोलना पड़ रहा है। उस समय शायद मैंने रट के बोला था, मैं स्कूल में था। आज मैं मेरे अनुभव शेयर करूंगा। तो 5 दिसंबर के उपलक्ष्य में मेरे वरिष्ठ साथीगण, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, उपस्थित सभी शिक्षकों का मेरा तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम आदिकाल से ही शिक्षक और शिष्य बहुत बड़ा नाता रहा। सभी हम जानते हैं, चाहे वो एकलव्य की बात करें
गुरु वशिष्ठ की बात करें या और भी जो भी हमारे गुरुजन रहे हैं, हमारे समक्ष भी काफ़ी मौके हैं जहाँ हमें गुरुओं के सम्मान के प्रति, गुरुओं के जो आचरण है उनके प्रति हम बहुत सजग रहते हैं। और आज भी भारतवर्ष में खासतौर से गुरुओं के प्रति जो आदर है वो बना हुआ है, वो बना रहेगा। मेरा ऐसा मत है और मेरा मानना है कि हम सदैव इनके ऋणी हैं। तो एक बार मैं आप सबको नतमस्तक करता हूँ, नमन करता हूँ और हमारे सारे गुरुजन हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमें इस काबिल बनाया है। निसंदेह मैंने ये क्यों बोला कि मेरा अनुभव है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षा में जो हमारा अनुभव रहा है, मेरा खास तौर से, कि टीचर क्या दे सकता है। टीचर वो सब कुछ देता है। आज हमें ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, माता पिताओं ने हमने गुणवत्ता दी है जिसके अंदर हम हमारे उसके हैं, मगर टीचर ने हमें जीना सिखाया, आगे संघर्ष करना सिखाया, लड़ना सिखाया और कैसे आगे चलना है ये उन्होंने टीचर ने दिया है। तो टीचर के लिए हमारी जिंदगी में हर एक की में बड़ी उपलब्धता है, बड़ी उपलब्धियां हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान केवल 5 सितंबर का नहीं है, ये सम्मान 365 डेज 24 आवर्स है। ये अंदर से होता है, ये कोई ऑटो रिवर्स सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जिसको उठाया और कर दिया। ये अंदर से है, ये दिल से है, विश्वास से है। सो आप सभी के लिए हम कृतज्ञ हैं। निसंदेह आप वो चीजें सिखाते हैं जो एक बच्चा उसको लेकर पूरे मार्केट में आता है, उसका पूरा संवर्ग होता है। और आज के दिन ही, आज इस विशेष दिवस को मनाया जाता है 5 सितंबर के लिए, जहां पर कुछ सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, समग्र की बात की जाती है, ताकि वो आने वाले समय को लड़ सके। मेरा ऐसा अनुभव है कि टीचर क्या करता है उस बच्चे के साथ, जब स्कूल में जाता है उसको बहुत सरल तरीके से सिखाता है, उसको सहज बनना सिखाता है, उसको सहनशीलता सिखाता है, उसको संघर्ष करना सिखाता है, उसको समानता सिखाता है, उसको वो सब चीजें बताता है कि जिंदगी के अंदर स्वावलंबी कैसे बना जाए, सही सुनता क्या होती है। वो सब चीजें हैं जो कि आज हमारे समाज के अंदर शायद कहीं थोड़ी थोड़ी विलुप्त होती जा रही है। मगर आज भी मेरा मानना है कि शायद ये तकनीकी युग की वजह से जो 2021 बोलते हैं, मगर इसमें भी जो हमारे टीचर्स, जितने हमारे गुरुजन रहे, जिन्होंने जो स्वयं इस चीज से अनभिज्ञ है कि इस तरह की नौबत आएगी कि जहां पर हमारे बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आएंगे, हमारे समक्ष नहीं आएंगे, और हम बच्चों को किस तरह उनका ज्ञान देंगे और उस टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करेंगे, वो जो आपने जिस बेहतरीन तरीके से किया, मैं आप सबको फिर नमन करता हूँ और आप सबका शुक्रिया। ये आसान काम था। अगर मुझसे अगर ये पूछा जाए तो वाकई में मैं तो समझता हूँ कि जो मैं प्लांट चला रहा हूँ शायद आप लोगों ने उससे भी कठिन कार्य किया है। तो निसंदेह आप सब उसके पात्र हैं कि जो कि मैं सोच नहीं सकता कि एक बच्चे को रिमोटली पढ़ाना, किस तरह की आपके लोग भाषाएं प्रयोग करते हैं। मुझे काफी कंप्लेंट भी आई थी, मगर आप सब ने वो सहन किया और वो हर दम हर समय वो कोशिश की ताकि बच्चे कुछ न कुछ सीख सकें। वो आपका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, उसको टीचर बोलते हैं। तो वो जो आप लोगों ने किया वो वाकई में, मैं आपको बताऊं, मैं इसमें थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर लेता हूँ कि आप सब शिक्षक हैं और मेरे पिता भी शिक्षक थे। मैं उस फैमिली से आता हूँ यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा नाता रहा हुआ है। जहाँ मेरे पिताजी शिक्षक थे तो मेरे पिताजी ऐसे मुझे दोस्त भी थे और वो डिसिप्लिन भी सिखाया और उन्होंने शिक्षा भी दिया मेरे को कि किस तरह समाज में आपको लड़ना है, किस तरह समाज में आपको जाना है, किस तरह आपको संघर्ष करना है। तो वो सब चीजें हैं। सो मेरे यहाँ खुद का स्कूल था। सो मुझे इस अच्छी तरह मैं सोच सकता हूँ कि मेरे यहाँ भी शिक्षक शिक्षिकाएं थी जो कि वहाँ काम करते थे और किस तरह उनका बच्चों के प्रति, जो एक एक बच्चे के प्रति उनका अटैचमेंट रहता था, उनको जो कोशिश करते थे निस्वार्थ, वो एक बड़ा एक अलग है। इतने सारे अगर आप देखेंगे पुराने निकाल के, जो एक, मैं इसमें शिक्षा और शिक्षिका की भाषा या शैली की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी उसमें, क्योंकि वो समझ जाते हैं। शिक्षक भी जानता है मेरा जो शिष्य किस तरह का है, तो वो उसको दी जाती है। और आदिकाल से आप देखते जाएंगे कि आपको वो सब चीजें अगर देखेंगे तो वो उस समय ये नहीं था कि ये किस धर्म का है, किस जाति का, किस संप्रदाय का, किस व्यवस्था से आता है। वहां से गुरुकुल हुआ करती थी। गुरुकुल व्यवस्था के अंदर आप सोच सकते हैं कि किस तरह समानताएं होती थी, सभी को सारा कार्य करना पड़ता था। आज भी स्कूल के अंदर वो शैली शायद विलुप्त हो रही है, कहीं ना कहीं शायद हमारे सिस्टम में कहीं कमी आ रही है। बट मैं समझता हूँ कि आज भी उतनी ही जरूरी है जो कल जरूरी थी, क्योंकि ये सब व्यवस्था चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि हम लोग हमारे प्रोग्रेस को रोक देंगे। प्रोग्रेस के साथ में हमारा सर्वांगीण विकास उतना ही जरूरी है, चाहे वो खेलकूद है, चाहे वो लोगों के प्रति, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। शायद अभी मैंने यहाँ देखा है, खासतौर से नॉर्दर्न इंडियंस में तो मैंने देखा है कि आज टीचर मिलते हैं तो जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और वो आज भी वो है। और आज भी मैं स्कूल में जब हम जाते हैं, आज भी
कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो कुछ टीचर रहे हैं, बाकी मोस्टली तो रिटायर भी हो चुके हैं और कुछ इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आज भी उनको नमन करते हैं, हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने वो चीज़ें हमें सिखाई हैं, वो चीज़ें बताई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम क्या थे, रोज जाते हैं, हमें कुछ शब्द आते हैं जो हम घर से सीखते हैं, बाकी सब कुछ हमारी जो कार्य पाठशाला है वहाँ सिखाया जाता है, वहाँ सब कुछ वहाँ से सीखा जाता है। तो आप सबका तमाम जितने भी उपस्थित हैं, मैं निसंदेह उनका सबका दोबारा से सशक्त नमन करता हूँ। और मैं यही करता हूँ कि हमारे जो स्कूल है, जो हमारे आने वाली व्यवस्था है, और इसी तरह हम बच्चों के लिए जितना भी कर सकें, क्योंकि ये समाज के देन है। जितनी भी शिक्षण संस्था हैं जिसमें शिक्षक का जो रोल है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। वो रीढ़ की हड्डी का मतलब है पूरी तंत्रिका तंत्र उस पर टिकी होती है। आप सोचिए कि आप लोगों पर रहता है कि किस तरह का वो स्कूल का वातावरण चाहिए, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और वो जिम्मेदारी इतनी बनती है कि आज मैं ये नहीं बोल सकता कि आज बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि आज बच्चे बहुत कम उस परिवेश में पले हैं जहाँ उन्होंने संघर्ष सीखा है। आज बच्चे बहुत अच्छे माहौल से आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट लाइफ जी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को वो सब दिया जाए, मगर उसके साथ साथ उनको संघर्ष करना सिखाया जाए, सहनशीलता सिखाई जाए, समानता सिखाई जाए, उनको आपस में किस तरह का वैचारिक समानता होनी चाहिए वो सिखाया जाए। वो बहुत जरूरी है। ये देखने में बहुत छोटी चीजें लगती हैं, मगर एक गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि वो दें। और वो हमें विरासत में मिली कुछ चीजें हमें स्कूल से सीखी, और कुछ चीजें हम लोग तो गुरुकुल जैसे टाइप में भी पढ़े हैं, हॉस्टल में भी रहे हैं, और हमारे खुद के भी स्कूल रहे हैं। तो हमने वो सब चीजें देखी हैं कि उस बच्चे में जैसे बोलते हैं ना, खुद के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वो सब चीजें देखने को मिल जाती हैं आपको। तो उस बच्चे में अलग अलग प्रतिभाएं छिपी होती है, मगर ये मानना जरूरी है कि हर बच्चे में प्रतिभा है। मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है, क्योंकि वो ईश्वर का वरदान है। वो ईश्वर का वरदान से प्रतिभा निश्चित तौर पे होगी। तो वो उस प्रतिभा को निकालना, उस प्रतिभा को उसको सजाना, वो एक ईश्वर का काम है। उसकी बुद्धि को खोलना, उसको आगे ले जाना, उसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वो गुरु का काम है। और वो गुरु निस्संदेह उसको बहुत बखूबी करता है। मेरे को पूरा तो याद नहीं, बट शायद सबने ही पढ़ा होगा, वो संस्कृत का श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम विनयादि धर्मात्म। तो हमें सबको बताया गया है कि आज जो विद्या देते हैं, जो हमें गुरु पढ़ाते हैं, उससे हमें विनय आता है। उस विनय से हमें ज्ञान मिलता है, धर्म मिलता है, धर्म से हमें धन मिलता है, धर्म से हमें सुख मिलता है। अल्टीमेट एम क्या है? एम तो लाइफ का यही है कि आप किस तरह अपनी जिंदगी को सुकून से जिए, किस तरह अपने उसको अपनी जो दिनचर्या है उसमें पूरा अनुकूल ऐसे कार्य करें जो दूसरे के काम आए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा यहाँ की सोच है। और इस सोच और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा जो मैं योगदान मानता हूँ वो गुरु का मानता हूँ। इसलिए गुरु का जो पद है, प्रतिष्ठा है समाज में, वो नंबर 1 की। यही एक ऐसी संस्था है जो सारे रोजगारों के लिए क्रिएट करती है। आज इस संस्था में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, और आसपास हैं डिप्टी कमिश्नर, एमएलए, मिनिस्टर, सब हैं, मगर वो सब देन आपकी। वही एक स्कूल ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे इंस्टीट्यूशन के लिए रोजगार क्रिएट करते हैं, और कोई संस्था ऐसी नहीं है इस दुनिया में। तो मेरा वाकई बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त सम्मान रहता है। मैं अंदर से इतना सोचता हूँ कि शायद मैं कभी कभी दिलानी महसूस भी करता हूँ इस चीज की। इतना समय हो गया, मुझे 1 साल होने को आ गया है। मेरी शिकायत भी है, खुद अपने आप से भी है, और शायद आप लोगों से भी होंगी कि मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया। मैंने आप शायद उतना समय नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था वास्तविकता में। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ यहाँ की आज 5 सितंबर को कि शायद हम हर क्वार्टरली मिला करेंगे। शायद मैं आप लोगों से 1 to 1 हो सकूँ, शायद कुछ न कुछ मिशन का मैंने प्रॉमिस किया था। तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर का महीना, सितंबर का और 15 अक्टूबर तक हम लोग थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, मगर इस व्यस्तता के बावजूद हम अपने आप को समय निकालेंगे और आपसे मिलने का मौका अवश्य लेंगे। और निसंदेह आपकी कुछ समस्याएं भी थी, जो आज का ये मौका नहीं है, पर्व नहीं है इस तरह की मैं करूं, बट मैं समझ सकता हूं कि शायद कुछ न कुछ रही होगी, बट कुछ समय के लिए और शायद आपको कष्ट रह सकते हैं। सो प्रिंसिपल साहब आते रहते हैं हमारे पास, तिवारी जी काफी इसको संजीव हैं, एड्रेस भी कर रहे हैं, और भी कुछ इस तरह के होंगे तो निसंदेह करेंगे। बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के पुनरुत्थान के लिए जो भी अब हमसे बन सकता है वो भी करना चाहिए। और आज का दिन ये विशेष पर्व है, मैं तो इसको बहुत बड़ा मानता हूँ, सबसे विशिष्ट मानता हूँ, क्योंकि इसी दिन के आज यही दिन है जिसने आज हम सबको यहाँ बनाया, संबोधित किया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सबको।
teacher's purpose is not to create students in his image, but to develop students who can create their image. With this quote, a very happy Teachers' Day. Good evening, everyone. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed this auspicious occasion. Here I am, Damayanti Upadhyay, on behalf of the entire fraternity of ABPS family. My sincere thanks goes to Almighty God for making today's program memorable. By His blessings and grace, we are able to make the event what it was. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of ABPS family, I give a really heartfelt vote of thanks to our Unitech, Grasim Industries Limited, Chairman of SMC, Shri Ashok Kumar Gupta sir, who graced us with this thought-provoking address, set a perfect platform for our school. Today, we had the opportunity to listen your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. I would like to thank AVP HR cum Secretary of SMC, Shri Ajit Tiwari sir, for always being supportive in all possible manner. I would like to thank our AVP Operations and Maintenance of Caustic Soda Plant, Shri Ajay Gupta sir, and General Manager, Operations Captive Power Plant, Shri Deepak Sharma sir, for taking out time from their busy schedule to grace the occasion. My heartfelt thanks goes to our departmental head cum General Manager HR, Shri Sanjeev Mishra sir, who always appreciates our work and keep on motivating by taking effective sessions for the betterment of we teachers. I express my thanks to the General Manager ER, Shri Amit Maheshwari sir, for being a part of our celebration today. I would like to thank our beloved Principal, Shri Sanjay Khanna sir, for all the words of wisdom that radiated a source of energy within us. We'll ever remain grateful to you, sir, and we thank you for being with us today. Heartfelt thanks goes out to all my fraternity of ABPS family who always stand by us, guide us, lead us, and motivate us. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence to this program. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated team members. I thank everyone for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. Thank you members of Guest House, State Department and Instrumental Department for their technical support and making our program successful. Once again, thank you very much to all who assembled here. Now, I request to all of you to join us for the dinner. Thank you so much.